No, we are going to contest in 3 seats in the forthcoming Tamil Nadu Assembly election, and we are very happy that we are part of the alliance of AAMMK, led by Mr. Dinakaran, and we are going to contest in Vaniambadi, Krishnagiri, and Sankarapuram. And we'll be holding a joint public meeting. I'll be also be joining that public meeting, which is going to be held on the 12th of March in Chennai in the evening in the YMCA grounds. And jointly, I will be campaigning with the AAMMK leadership and the other allies which are going to be part of this alliance. And we are definitely going to try and give a third political alternative to the people of Tamil Nadu, because traditionally there has been only two alliances, the ADMK and the DMK-led alliance. So the Tamil Nadu people definitely want a third political viable alternative, and there is a huge political space for that. Mr. Dinakaran's victory in a by-election, that itself is a very historic victory which he attained, because the assembly constituency which he represents is a very prestigious political constituency, and he defeated ADMK and DMK. So that itself had sent a lot of shudders and concerns in other two political formations. So we'll definitely try, and our whole intention is that the people of Tamil Nadu, especially the weaker section, the OBCs, the Muslim minorities, they deserve an independent political voice, because the other two alliances, you are not very independent in voicing the real concerns of the weaker sections. So we hope to do that. How many seats this alliance will contest? 2 out of 234, how many? As far as I know, we are contesting 3 seats. The remaining 231 seats will be contested by Mr. Dinakaran's party and other alliance partners. The whole details would be given to you by Mr. Dinakaran when he holds a press conference today or tomorrow. Every details will be given. So far you are looking forward to contesting on each and every seat of Tamil Nadu, this alliance? This is what I know, but this will be clarified in a much better way when Mr. Dinakaran holds a press conference and addresses the media. He will tell you in detail which constituencies, which parties are contesting. सर, इससे हटके अभी चुनाव से ये कल बाटला हाउस हेलीकॉप्टर पे कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें माना है कि जो आरिफ है उसने ये किया है और जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको माना है। उसके पहले जब ये एनकाउंटर हुआ था, काफी सारे लोगों ने आंसू बहाए थे, कहा था कि ये एनकाउंटर झूठा है, फर्जी एनकाउंटर है। तो अभी क्योंकि 2 कोर्ट्स ने इसको माना है कि ये सही एनकाउंटर था और जो मुजरिम है वो पकड़ा गया वो बिल्कुल सही है, इस पर क्या और इंडियन मिलिट्री का भी इसमें हाथ है, तो आप क्या कहना सर, आपका भी वॉइस था इस पे? आपको क्या कंसर्न है मेरे से सवाल कर रहे हैं? आपका कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जब ये एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये फर्जी एनकाउंटर है, ठीक है। कई सारे दूसरे लीडर्स ने भी कहा था कि इस पर जांच होनी चाहिए। अब 2 कोर्ट्स ने उसको सही ठहराया। अब आप देखिए, मैं तो AIMIM का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब आप जो लीडर्स का नाम ले रहे हो दूसरी पार्टी के हैं, जो मेरे सख्त खिलाफ हैं, जो मेरे को रोज सुबह शाम मेरे को गाली देते। अब इन लोगों का जवाब मैं कहाँ दे सकता हूँ प्रसाद साहब? उनसे ही पूछ लो, आप अपने दिल्ली ब्यूरो को बोलो, आप उनको जो रोए या नहीं उनसे नहीं मैं देखिए तो एक बात ये क्या सही ठहराते हैं या नहीं? 2 कोर्ट ने फैसला दिया है। एज ए इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी आप भी हर चीज में अपनी रुचि रखते हैं। कोर्ट का जजमेंट है, मानना पड़ेगा ना। कोर्ट का जजमेंट कौन नहीं मानता, बोलिए आप? जुडिशरी का जजमेंट है, मानना पड़ेगा, और जो भी डिससेटिस्फाइड होगा उसको अपील करने का मौका है, वो भी कोर्ट का प्रोसेस है। तो कोर्ट का जजमेंट है, इसमें मानना नहीं मानने का क्या? कोर्ट का जजमेंट है। आपको कोर्ट के जजमेंट से आप मुतमईन नहीं है, अपील करिए, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, आप फिर रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। तो जुडिशियल प्रोसेस है, इनको राइट है।
कोर्ट का जजमेंट है, मानना पड़ेगा, उसमें क्या है। मगर आप जो पॉलिटिकल पार्टीज का बात नाम ले रहे हो वो उनसे पूछिए, मैं कैसा बोलूँ। Sir, now you have finalized whole plan for Tamil Nadu. What about Bengal? Because Bengal was on your priority list. Where you are visiting again last You time? see, when you in publicly- I don't know whether you have followed what I said in my party formation day public meeting. MIM contesting elections or not contesting elections is based on what my party thinks is right for my party. So we will decide at an appropriate time. Our team members are in Bengal, led by Mr. Majid Hussain, along with our Bengal team is there. And once we meet them, and we'll decide and let you know. So nothing is finalized, whether your party will contest or not contest. No, I'll let you know at appropriate time. Regarding Blansa issue, ప్రతిసారి MIM ఇంటెన్స్ కమ్యూనికేషన్ రేట్ చేసిన కొన్ని పొలిటికల్ అలిగేషన్ कर रहे हैं आपको सर। मतलब बीजेपी का भी ये कमेंट्स है। कमेंट है स्पेसिफिकली इनके एवेन्यू पूरा बोलते बच्चे, सर मतलब बाइंसा की इंसिडेंट कैसा देखते हैं आप, क्या बोलना बोलते बच्चे क्या। नहीं सर, आपके पॉइंट से कैसा देखते हैं, मतलब हाँ। आप तो अपील करते रहे कि नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, हमेशा अपील करें, हमेशा अपील करें कि अमन रहना, पीस रहना। हम तो तेलंगाना गवर्नमेंट को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तेलंगाना गवर्नमेंट के लीडरशिप को बोल चुका हूँ कि ओल्ड निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, ओल्ड आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में पूरी तवज्जो लेने की जरूरत है वहां पर। ये ऑलरेडी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूं सबको, कहीं पर भी ब्रीच ऑफ पीस नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नहीं है। तेलंगाना, ये भैंसा के रिसेंट 2 इंसिडेंट्स को छोड़कर ओवरऑल तेलंगाना बड़ा पीसफुल रहा है, बावजूद इसके कि कम्युनल और फैशिस्ट फोर्सेस जो है वो प्रोवोकेशन करते रहते हैं, मगर ओवरऑल पीस रहा है। तो पीस को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और यकीनन मैं उम्मीद करता हूं कि भैंसा हो या तेलंगाना हो, वहां पर अमन रहेगा और अमन और मजबूत होगा। कर्नाटक के होम मिनिस्टर ने सर अभी कहा है कि गवर्नमेंट सोच रही है एक ऐसे कानून का जो ये malicious attack and जो कैंपेन, फेक कैंपेन या ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, उसके खिलाफ एक कानून बनाने की वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा कानून लेके आया जाए कि इस तरीके के फेक और ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ना हो। आप बोलिए, आप मीडिया में रह के आप बर्दाश्त करेंगे इसको? क्या मतलब ब्लैकमेलिंग का? ब्लैकमेलिंग का मतलब क्या है? आप अपनी जिंदगी जो है गंदगी में गुजारेंगे, बदकिरदारी में गुजारेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे कमजोरों का।